गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुज़र कर दे। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इअलमू अन्नमल हयातुद दुनिया लअबुन व लहव व ज़ीनतुन व तफ़ाख़ुरुन बैनकुम व तकासुरुन फ़िल अम्वालि वल औलाद। व क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नद दुनिया हल्वतुन ख़दिरा व इन्नल्लाह तआला मुस्तख़लिफ़ुकुम फ़ीहा फ़यंज़ुर कैफ़ तअमलून फ़त्तक़ुद दुनिया वत्तक़ुन निसा फ़इन्न अव्वल फ़ितनत बनी इसराईल कानत फ़िन्निसा। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। असर की नमाज के बाद ये बात चल रही थी कि हमारी तबीयतों में नरमी हो, हमारे अखलाक अच्छे हों, हमारा मिजाज माफ़ करने वाला हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। குர்ஆனுடைய ஆயத்தை ஹதீஸுல் ஸனத்தில் பின்னால் தன்னுடைய பேச்சை ஆரம்பிக்கிறார் அப்படின்னா, அசலுக்கு பின்னால் சில இந்த தலைப்பில் பேசிக்கொண்டிருக்கிறோம். என்ன தலைப்பு? எங்களோட குணம் மிருதுவாக ஆகிறது, எங்களோட குணத்தில் அந்த தன்மை வாழறது, மன்னிக்கிற தன்மை வாழறது, இந்த தலைப்பில் பேசி நாம் பேசிக்கொண்டிருக்கிறோம்। गुस्से को पीने का मिजाज हो, ज्यादती करने वाले को माफ़ करने का मिजाज हो, बुराई करने वाले के साथ अच्छाई करने का मिजाज हो। கோபத்தை உள்ளிக்கிற தன்மை வாழறது, எங்களுக்கு நோவின காலங்களை மன்னிக்கிற தன்மை வாழறது, எங்களோட மோசமா நடக்கிற ஆக்களோட நாங்கள் நல்லா நடக்கிற தன்மை வாழறது। और ये काम एक दफ़ा नहीं करना, ये मिजाज में हो। இது ஒரு தடவை செஞ்சுட்டு முடிக்கிறத பத்தி இல்ல, இதுவே எங்க குணமாக ஆகிறத பத்தி தான் பேசணும்। सीगे सिफत को लाने में यही हिकमत है। सीगे सिफत को लाने में वल्काज़िमीन अल-गैज़ वल्आफ़ीन अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। ये सीगे सिफत लाने में फ़ेल नहीं लाए, सीगे सिफत लाने में यही हिकमत है कि ये चीज़ें हमारे मिजाज, हमारा वस्फ बन जाए। இந்த தன்மைகளை பயான் செய்கிற நேரம் குர்ஆன்ல அதனுடைய சீகா, அது சிஃபத்தாக சொல்லப்பட்டதனுடைய யதார்த்தம் அதுதான், அதுவே குணமாக ஆகிடும்। அது வினை சொல்லாமல் வேளாக சொல்லப்படாமல் அது ஒரு சிஃபத்தாக சொல்லப்பட்டது, அதுல ஜவாப் இருக்கும்னு அர்த்தத்தில்। डॉक्टर हर जगह डॉक्टर है, ये नहीं कि इस जगह डॉक्टर है इस जगह गैर डॉक्टर है। इंजीनियर हर जगह इंजीनियर है, यहाँ भी इंजीनियर है वहाँ भी इंजीनियर है। जो काज़िम होगा वो हर जगह काज़िम होगा, जो आफ़ी होगा वो हर जगह आफ़ी होगा, जो मुहसिन होगा वो हर जगह मुहसिन होगा। அவர் எல்லா இடத்துலையும் டாக்டர் தான், இப்படி இல்லை எங்க டாக்டர் ஆயிடுவார், இன்னொரு இடத்துக்கு போனா வேற மாதிரி மாதிரி இல்லை, எங்க போனாலும் அவர் அந்த தன்மை அவருக்கு கலந்தது இல்லை। இன்ஜினியர் அது மாதிரி அவர் எங்கேயும் இன்ஜினியர், அவருடைய தன்மை அவருக்கு மாறா, அவர் இங்க இருந்தாலும் அங்க இருந்தாலும்। அது மாதிரி ஒரு கோபிக்கிறவர் வேண்டாம், அவர் எங்கேயுமே கோபிக்கிறவர் தான், அந்த தன்மை அவருக்கு மாறா। ஆனா அவரால் மன்னிக்கிறவராக இருந்துட்டா அவர் எல்லா இடத்துலையும் மன்னிக்கிறவராக இருப்பார்। ஒரு உபமானம் செய்ய ஒரு மனுஷனாக இருந்துட்டா அவர் எல்லா இடத்துலையுமே மனுஷனாக இருப்பார், எல்லாரோடையும் அப்படிதான் இருப்பார்। अल्लाह ताला फरमाते हैं मुत्तकी जहां भी होगा गुस्से को पिएगा। அல்லாஹ் தஆலாவுடைய இந்த குர்ஆன் வசனத்தை விளக்குறது என்னன்னா, தக்வா உள்ள மனிதன் அவர் எங்க இருந்தாலும் தன்னுடைய கோபத்தை ஒதுக்கிடுவார்। मुत्तकी के साथ जो भी किया जाएगा वो माफ करेगा। ஒரு முத்தகையான மனிதரோட என்ன செய்யப்பட்டாலும்
அவர் அதை அப்படியே மன்னிச்சுடுவார். वो दिल में नहीं रखेगा। அது உள்ளத்துல வச்சுக்கொண்டு நடக்க மாட்டார். मुत्तकी जहां भी होगा बुराई करने वाले के साथ अच्छाई करेगा। ஒரு தக்வாவுள்ள மனிதர் அவன் எங்க இருந்தாலும் தனக்கு கெடுதி செய்யாதவரோட நல்லது செய்வார். हमारे नबी ने अपने अमल से इन तमाम आयात पर अमल करके दिखाया है। இதனுடைய அன்பு நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் தன்னுடைய வாழ்க்கையில எல்லா ஆயத்துகளையும் அமலாக செயலாக செஞ்சு காட்டியிருக்கிறாங்க. अम्मा आयशा रजी अल्लाह अन्हा से किसी ने पूछा कि आप अलैहिस्सलाम के अखलाक क्या थे? हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा அவங்களுக்கு ஒரு மனிதர் கேக்குறா, அன்பு நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் உடைய குணம் எப்படி இருந்துச்சு? அந்த குணத்தை பத்தி சொல்லுங்க. अम्मा आयशा ने फरमाया, तुमने कुरान नहीं पढ़ा? हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा, तुमने कुरान पढ़ा क्या? कब पढ़ा है? तो फरमाया कान खुलुकुल कुरान, अल्लाह के नबी के अखलाक कुरान थे। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा பதில் சொன்னாங்க, அன்பு நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் உடைய அந்த உயர்ந்த குணங்கள் அது குர்ஆனாகவே இருந்தது. अब उलमा नबियों के वारिस हैं। இப்ப செல்லவாத விஷயம் என்னன்னா உலமாக்கள் நபிமார்களுடைய வாரிசு. उलमा नबी के नायब हैं। उलमाக்கள் नबी की பகரமாக உள்ளவர்கள். तो नायब में वो सिफात होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? பகரமாக வந்தவர்கள்ல அந்த தன்மைகள் இருக்கணுமா இருக்கக்கூடாதா கேக்குறாங்க. இருக்கணுமா? अम्मा आयशा फरमाती हैं अल्लाह के नबी के अखलाक कुरान थे। हज़रत आयशा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उடைய குணங்கள் குர்ஆனாக இருந்துச்சு. जो सिफात कुरान में है वो सारी हुजूर में थी। அப்படியே அர்த்தம் என்னன்னா குர்ஆன்ல என்னென்ன தன்மைகள் நல்ல தன்மைகள் சொல்லப்படுகிறோ அது அப்படியே அன்பு நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் உடைய வாழ்க்கையிலே இருந்துச்சு. वो सिफात क्या हैं? अल्लज़ीन युनफ़िक़ून फ़िस्सर्रा वद्दर्रा वल्काज़िमीनल ग़ैज़ वल्आफ़ीना अनिन्नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन वइबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा वल्लज़ीना यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। ये हमारे नबी की सिफात है। हज़रत कोई काटी में आयतुகள் இதோட அவரோ இதனுடைய அன்பு நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் உடைய உயர்ந்த தன்மைகளை சொல்லுங்க. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما إنها ساءت مستقرا ومقاما। ये हमारे नबी के अखलाक हैं। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रत अ'युन वजअलना लिलमुत्तक़ीन इमामा। ये हमारे नबी के अखलाक हैं। क़द अफ़लहल मुअमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत ऐमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन। ये हमारे नबी के अखलाक हैं। अब ये सिफात जैसे नबी में थी नायब नबी में भी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? எந்த அளவு அன்பு நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் இருந்துச்சோ அதெல்லாம் அந்த நபிக்கு பகரமாக வந்தவர்களே தெரிக்கணுமா இல்லையான்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க கேக்குறாங்க. मूरिस में हो तो वारिस में होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? வராசத்து கொடுத்து போட்டாங்க அவர்களே இருந்தாங்க வாரிசுதாரர்களே இருக்கிறாங்க। और ये सिफात आप पहली दफा नहीं सुन रहे, ये आपने हजारों दफा पढ़ी है। இந்த தன்மைகள் செல்வே ஆயத்துகளை நீ முதற்கரம் கேட்கல நீ அல்லாஹ் கரெக்டானதெல்லாம் கேட்டு முடிச்சு ஓதி முடிச்சு। तो इन सिफात के साथ मुत्तसिफ होने में क्या चीज माने है? अगर இந்த தன்மைகள் உள்ளவர்களாக நாங்க ஆகிரத்துல எது தடையாக இருக்குது? एक चीज माने है, ஒன்றுதான் தடையாக, एक चीज माने है, ஒன்றுதான் தடையாக। इन सारे अमराज की जड़ एक है। ये
எல்லா நோய்கள் இந்த தன்மைகள் இல்லாததுக்கு பேரு நோய் தானே எல்லா நோய்களுக்கு பேரு உண்டு जो माहिर डॉक्टर होता है ना वो जड़ पकड़ता है डॉक्टर वैद्य திறமையான ஆளுங்களே அந்த நோய்க்கு வேற கண்டுபிடிச்சு इन सारे अमराज की जड़ எல்லா நோய்களுடைய பேர் हसद की जड़ பராமரிப்புடைய பேர் बुग़्ज़ की जड़ கோபத்துடைய பேர் आपस की लड़ाइयों की जड़ நமக்கு மத்தியில் உள்ள பிரச்சனைகள் பிரிவுகளுடைய பேர் इंतकाम की जड़ பழிவாங்குற தன்மையுடைய பேர் तबीयत में सख्ती की जड़ கடினமான குணமுள்ள தன்மையுடைய பேர் माफ न कर पाना इसकी जड़ மன்னிக்கிற தன்மை இல்லாமல் போனதுடைய அடிப்படை औरों के साथ बदख्वाही की जड़ அடுத்தவர்களுடைய நலவில் அவர்களுக்கு தீங்கு செய்யக்கூடிய அந்த தன்மையுடைய அடிப்படை गैर महरम की तरफ दिल के माइल होने की जड़ மகரமில்லாத பெண்களின் பக்கம் உள்ளத்தில் ஒரு சாய்வு இருக்கிறதுடைய அடிப்படை सिर्फ एक है ஒன்று और वो दुनिया की मोहब्बत है அது என்ன தெரியுமா दुनिया और उलम और ये मैं नहीं कह रहा अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं அது சொன்ன இது நான் சொன்ன செய்தி அல்ல இது அல்லாஹ்வுடைய நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்ன செய்தி हुब्ब दुनिया रअस कुल्ल खतीआ சுருக்கமா நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் दुनिया உலகத்துடைய நேசம் அதுதான் எல்லா தவறுகள் எல்லா பிழைகள் எல்லா பாவங்களுடைய அடி हमारे नबी ने हमें दुनिया से बेरग़बती सिखाई எங்களுடைய நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் உலகத்தை விட்டு பக்கத்து வாழ்வதை படிச்சிருந்தீங்க हमारे नबी ने हमें दुनिया से बेरग़बती सिखाई है कौल से भी अमल से भी நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் துனியாவிலிருந்து பக்கத்து வாழ்வத வாழ்க்கையாகவும் படிச்சிருந்தீங்கறாங்க வாழ்க்கையாகவும் காட்டி தந்தீங்கறாங்க अलैहिस्सलाम का इरशाद है इन्न दुनिया हलवतुन खदिरा दुनिया मीठी भी है लजीज भी है मीठी भी है खूबसूरत भी है உலகத்திலே அது இனிப்பானது அழகானது इसका जायका भी बहुत अच्छा है அது டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லா இருக்கு देखने में भी बड़ी खूबसूरत है பார்க்கிறதுக்கு ரொம்ப வடிவா அழகா இருக்கு है कि नहीं அப்படியே கேட்கிறாங்க दुनिया का जायका अच्छा है ना துனியாவில நல்ல தாயின்னு கேட்கிறாங்க जब गाड़ी पास हो और बड़ा मोबाइल एप्पल हाथ में हो और आलीशान कपड़े हों और साथ कई कार्ड हों मजा आता है कि नहीं आता ஒரு விலை உயர்ந்த வாகனம் ஒரு விலை கூடின ஒரு ஆப்பிள் போன் விலை கூடின ஒரு உடுப்பு கூடவே கொஞ்சம் வெளிக்கான இருந்தா நல்லா இருக்குமா இல்லையான்னு கேட்கிறேன் इसका जायका बहुत अच्छा है அது டேஸ்ட் அது நல்லா नहीं और खूबसूरत भी बहुत है பார்க்கிறதுக்கு ரொம்ப அழகா இருக்கு आलीशान बंगला देख के दिल खिंचता है कि नहीं खिंचता பெரிய மாளிகை போல கூட பார்த்தா உள்ளே ஒரு ஆசை வருதா இல்லையான்னு கேட்கிறான் गैर महरम पास से गुजर जाए तो दिल माइल होता है कि नहीं होता மகரம் இல்லாத ஒரு பெண் பக்கத்துல கடந்து போனா உள்ளத்துல சின்ன தடுமாற்றம் வருதா இல்லையான்னு கேட்கிறான் खूबसूरत चेहरे के देखने को दिल करता है कि नहीं करता அழகான முகம் அது ஆணோ பெண்ணோ யாரை சரி கண்டா பார்க்கறதுல உள்ளத்துல விருப்பம் வருதா இல்லையான்னு கேட்கிறான் हमारे नबी फरमाते हैं इन्न दुनिया हलवतुन खदिरा इसका जायका भी बहुत अच्छा है और ये देखने में भी बड़ी भली मालूम होती है फिर आप फरमाते हैं वइन्नल्लाह मुस्तखलिफुकुम फीहा फयंजुर कैफ तअमलून अल्लाह ने तुम्हें इसलिए नहीं भेजा कि तुम मजे करो हलवतुन से मजे उठाओ और खजरतुन को देख के तुम मजे लो इसलिए नहीं बल्कि अल्लाह ने तुम्हें इसलिए भेजा है कि वो देखे कि तुम्हारे आमाल अच्छे रहते हैं या तुम दुनिया के चक्कर में आके बुरे हो जाते हो दुनिया के அழைப்பினது என்னது தெரியுமா இந்த துனியாவுடைய இனிப்பையும் இந்த துனியாவுடைய அழகையும் பார்த்து பாவிச்சு ருசிக்கிறதுக்கு பார்த்து ருசிக்கிறதுக்கோ பாவிச்சு ருசிக்கிறதுக்கோ இல்ல இந்த அழகையும் இந்த இனிப்புகளையும் நீங்க மாற்றி கெட்டு போறீங்களா அல்லது ஒரு அமல்களை சுத்தமா வச்சு கொள்றீங்களா பார்க்கத்தான் நல்லா துனியாவை एक माँ ने अपने घर में चूहा मार दवा रखी चूहा मार चूहे को मारने के लिए दवा रखी அவங்க ஒரு நல்ல உதாரணம் சொல்றாங்க ஒரு தாய் அவங்க வீட்டுல எலிக்கு கொல்றதுக்கு ஒரு மருந்து வச்சுக்கிறாங்க समझ रहे नहीं समझ रहे फिर कहें ஒரு தாய் தன் வீட்டுல எலியை கொல்றதுக்கு ஒரு மருந்து தயாரிச்சு வச்சுக்கிறாங்க
वो जो चूहा मार दवा थी वो सुर्ख रंग का शरबत था। அது ஒரு ஒரே கலர்ல உள்ள ஒரு சர்பத் மாதிரி பாக்குறது चूहे को मारने के लिए थी। அது எலிய கொல்றது। जब माँ ने लाके वो बोतल घर में रखी அந்த போத்தலை வீட்ல வச்சிருக்காங்க। तो बच्चे ने कहा अम्मी ये शरबत मुझे पिलाओ। இப்ப புள்ள சொல்லுது அம்மா அந்த சர்பத் எனக்கு தாங்கன்னு சொல்லு। तो अब माँ क्या कहेगी? हरगिज नहीं, அம்மா சொல்லுவாங்க ஒரு நாள் தரமாட்டேன்னு சொல்லுவாங்க। देखना भी नहीं इसको, அது மார்க்கெட் போடாதுன்னு சொல்லுவாங்க। ये जहर है, அது நஞ்சுன்னு சொல்லுவாங்க। ये मैंने चूहे को मारने के लिए मंगवाया है। அது இது கொல்றதுக்கு வாடி வச்சிருக்கீங்கன்னு சொல்லுவாங்க। सारी बात आप समझ गए? இதெல்லாம் சாமி கேக்குறாங்க। अब आप एक आयत में गौर करें। இப்போ நீங்க ஒரு ஆயத்தை अल्लाह ताला फरमाते हैं वला तमुद्दन्न ऐनैक इला मा मत्तअना बिही अज़वाजम मिनहुम ज़हरतल हयातिद दुनिया लिनफ्तिनहुम फीह व रिज़्क़ु रब्बिका खैरुन व अबक़ा। ए मेरे नबी आप हरगिज हरगिज दुनिया के साजो सामान की तरफ नजर उठा के न देखें। அல்லாஹ் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் முன்னோக்கி செல்றது நபி ஒரு நாள் ஒரு போதும் இந்த துனியாவுடைய இன்பங்களை பார்த்து நீங்க பார்வையை உயர்த்தியும் பார்க்கப்படாது என்று அல்லாஹ் சொல்றார்। ये किसको कह रहे हैं? अल्लाह ये யாருக்கு சொல்றா? யாருக்கு சொல்றா? अल्लाह के नबी को कह रहे हैं। क्या अल्लाह के नबी ने दुनिया से मोहब्बत करनी थी? அல்லாஹ்வுடைய நபி का अल्लाह சொல்றா। अल्लाह்வுடைய नबी ஸல்லல்லாஹு अलैहि वसल्लम दुनिया में मोहब्बत बेचारा। क्या अल्लाह के नबी ने दुनिया की मोहब्बत में गिरफ्तार होना था? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह दुनिया में मोहब्बत में पूरी पड़ी वाला नहीं होना था ना। ये हमारे नबी को कहकर हमें सुनाया जा रहा है। अल्लाह एंगलुடைய नबी की सल्ली और एंगलुடைய अल्लाह काटता। ला तमुद्दन्न का मुखातब हमारे नबी नहीं है, ला तमुद्दन्न का मुखातब हर आलिम है। अल्लाह ला तमुद्दन्न அந்த வினையுடைய அதுல வேட்டப்படுறவர்கள் அன்பு நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அல்ல அது யாரை முன்னோக்கி இருக்கிறாங்க ஒரு ஆலிமே சொன்னாங்க। ला तमुद्दन्न का मुखातब हर तालिब इल्म है। அதனுடைய முகாத்தப் ஒவ்வொரு மாணவர்। ला तमुद्दन्न का मुखातब हर मुस्लिम है। அதனுடைய அதனால முன்னோக்கப்படுறவர்கள் ஒவ்வொரு முஸ்லிமும்। हमें दुनिया से मोहब्बत नहीं करनी, நாம் துனியாவோட முகப்பத் வெச்சவர்களாக இருக்கப்படாது। हमें दुनिया से मोहब्बत नहीं करनी, நாம் துனியாவோட முகப்பத் உள்ளவர்களாக ஆகப்படாது। हमें दुनिया से मोहब्बत नहीं करनी। मेरे उलहतोட முகப்பத் இருக்கப்படாது। लोग धोखा क्यों देते हैं दुनिया की मोहब्बत में? மக்கள் ஏன் ஏமாத்துறாங்க உலகத்துல முகப்பத்தால? लोग कत्ल क्यों करते हैं दुनिया की मोहब्बत में? மக்கள் ஏன் கொலை செய்ய அளவு போறாங்க உலகத்தோட முகப்பத்? लोग चोरियां क्यों करते हैं दुनिया की मोहब्बत में? ஏன் திருடுறாங்க களவு செய்றாங்க உலகத்தோட முகப்பத்தால? डाके क्यों डालते हैं दुनिया की मोहब्बत में? திரையில் செய்றாங்க ஏமாத்துறது உலகத்தோட முகப்பத்தால? बगावत क्यों करते हैं दुनिया की मोहब्बत में? பிரச்சனை சர்ச்சை ஏன் செய்றாங்க உலகத்தோட முகப்பத்தால? आपस में क्यों लड़ते हैं दुनिया की मोहब्बत में? உள்ளூர் மத்தியில ஏன் அடிச்சுக்கொள்றாங்க சண்டை பிடிச்சுக்கொள்றாங்க உலகத்தோட முகப்பத்தால? एक दूसरे से हसद क्यों करते हैं दुनिया की मोहब्बत में? एक दूसरे से नफरत क्यों करते हैं दुनिया की मोहब्बत में? अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर इतनी दुनिया की तहकीर की है, इतनी दुनिया की तहकीर की है, अगर हम गौर करें तो हमें दुनिया की हकीकत मालूम हो जाए। अब आप कुरान की आयत के लहजे में गौर करें। इल्मु कुरान मजीद में इल्म या इल्मु चंद जगह पे आया है, हर जगह इल्मु नहीं आया। ये वहां आया है जो बात बहुत अहम है। ये वहां आया है जो बुनियादी बात है। अल्लाह ताला फरमाते हैं इल्मु अन्नमल हयातुद दुनिया लइबुन व लहवुन व ज़ीनतुन व तफाखुरुन बैनकुम
व तकासुरुन फिल अम्वालि वल औलाद। ए दुनिया भर के इंसानों, यकीन जानो ये दुनिया बच्चों का खेल है और कुछ नहीं। इसकी हार हार नहीं, इसकी जीत जीत नहीं। इसकी इज्जत इज्जत नहीं, इसकी जिल्लत जिल्लत नहीं। जब बच्चे आपस में खेलते हैं तो कोई हारते हैं, कोई जीत जाते हैं। जब जो हारने वाले होते हैं उनका मुंह इतना सा होता है, और जो जीतते हैं वो उछलते हैं, नाचते हैं। लेकिन अगले दिन दोनों एक जैसे। जब तक ग्राउंड में खड़े हैं वो मायूस हैं और वो हशाश बशाश हैं। जब ग्राउंड से घर चले गए दोनों एक जैसे हो जाते हैं। ये खुशी भी वक्ती और ये गम भी वक्ती। अगर ये बात समझ में आ जाए तो लोग दुनिया की दौड़ लगाना छोड़ दें। हमारे नबी ने अपने अमल से अपने अहले बैत को, अपने सहाबा को दुनिया से बेरगबती सिखाई है। आज के उलमा गुर्बत से डरते हैं। आज के उलमा गुर्बत से बहुत डरते हैं। सारी दुनिया डरती है, लेकिन आलिम का डरना अच्छा नहीं है। ये उसका वारिस है जिसके घर में एक एक महीने तक चूल्हा नहीं जलता था। ये उसका वारिस है जिसके घर में 2-2 महीने चूल्हा नहीं जलता था। अब्दुल सलाम मस्जिद में बैठ के नमाज पढ़ रहे थे। हजरत अबू हुरैरा आए, देखा कि बैठ के नमाज पढ़ रहे हैं। अब्दुल सलाम जब नमाज से फारिग हुए तो हजरत अबू हुरैरा ने कहा, या रसूल अल्लाह आप बैठ के क्यों नमाज पढ़ रहे हैं? आपने फरमाया, अल-जू या अबा हुरैरा, अबू हुरैरा भूख ने मुझे बिठा दिया है। हज़रत अबू हुरैरा ये बात सुन के रो पड़े। आपने फरमाया, अबू हुरैरा रो नहीं, फ़इन्न शिद्दतल हिसाब ला तुसीबुल जाइअ यौमल क़ियामत इज़ा तसब। अबू हुरैरा रो नहीं, जो अल्लाह की वजह से भूखा रहा अल्लाह उससे हिसाब नहीं लेगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने बातें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अबू हुरैरा अलवारा உலகத்தில் யாரு பசியில குடும்ப செஞ்சாங்களோ சத்தியமா நாளைக்கு மறுமையுடைய நாள் மனுஷருடைய மைதானத்துல கேள்வி கணக்குடைய கடினத்தில் அவங்க பாட்டுப்பட மாட்டாங்க, அவர்களுக்கு கேள்வி கணக்குடைய கடினம் ஏற்படாது। जो अल्लाह की वजह से भूखा रहा वो बगैर हिसाब जन्नत में जाएगा। अल्लाह का प्यार वसीयत होता है और केल्वी कणक इल्लाम सोचते। दुनिया की सारी लड़ाइयां खत्म हो सकती हैं अगर ये दुनिया की मोहब्बत निकल जाए तो। दुनिया का मोहब्बत बाजार के दुकानदारों में आपस में लड़ाइयां, घरों में औरतों की आपस में लड़ाइयां, मदरसों में हम मुदर्रिसीन की आपस में लड़ाइयां, बाजार वालों की आपस में लड़ाइयां। क्यों? सिर्फ दुनिया की वजह से।
பஜார்ல உள்ள கடைக்காரர்கள் அவங்களுக்கு மத்தியில பிரச்சனை, வீடுகள் எடுத்தாலும் உள்ள பெண்கள் அவங்களுக்கு மத்தியில பிரச்சனை, முதலசாக்கள் உஸ்மான்வார்கள் அவங்களுக்கு மத்தியில பிரச்சனை. இதெல்லாம் பிரச்சனைகள் ஏன் உள்ளத்துல துனியாவை மஹப்பத் அடிப்படை காரணமாய். इसलिए दुनिया की मोहब्बत को दिल से निकालना बहुत ज़रूरी है। அதனால मेरे உள்ளத்திலிருந்து இந்த துனியாவை மஹப்பத் வெளியாக்குறது இது ரொம்ப அவசியமான ஒரு வேலையாகும். आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं फत्तकुद दुनिया वत्तकुन निसा, दो चीज़ों से बचो, दुनिया से बचो, औरतों से बचो। நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ரெண்டு விஷயத்தை பயந்து தவிர்த்துக் கொள்ள சொன்னாங்க. ஒன்று துனியா, அடுத்தது பெண்கள். பயப்பட फ़इन्न अव्वल फ़ितनत बनी इसराइल कानत फ़िन निसा, इसलिए कि बनी इसराइल को सबसे पहले जिस चीज़ ने बिगाड़ा वो औरत थी। बनी इसराइल முதலாவது பிளவு பிரச்சனை உடைய உண்டானது அது பொம்பளையால. अगर आज यूं कहा जाए फत्तकुद दुनिया वत्तकुल निसा वत्तकुल जव्वाल, तो ये गलत नहीं है। அதுல சொல்றாங்க இன்றைக்கு இப்படி சொன்னாலும் அது பிழை இல்ல. துனியாவை பயந்துக்குவோம், பெண்களை பயந்துக்குவோம், இந்த மொபைல் போனை பயந்துக்குவோம் சொன்னாங்க. इसलिए कि इस कम वक्त मोबाइल ने हमारे दीन को बर्बाद कर दिया है। ஏன்னா இந்த மொபைல் இதுதான் எங்க தீனை அப்படியே அடிச்சு சீரழிச்சது. कितने परहेजगारों की परहेजगारी खत्म हो गई, कितनी पर्दादार औरतों के पर्दे निकल उतर गए, कितने नौजवानों की जवानियां दागदार हो गई, कितने पाक दामन ऐसे थे कि जिन्होंने सारी जिंदगी अपने दामन को बचाया, लेकिन इस मोबाइल की वजह से उनका दामन दागदार हो गया। इसलिए आप सारे भाइयों से दरखास्त है, दुनिया से बचे। तक़वा का दामन लाजिम पकड़े, गुनाहों से बचें, दुनिया की हवस न रखें, दुनिया की हवस लालच। अल्लाह ने जितनी दी है इसी पे गुजारा करें। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा अगर तू जन्नत में मेरे साथ रहना चाहती है तो 4 काम कर। कितने काम कर? ये काम करने से क्या मिलेगा? जन्नत में हुजूर के साथ। पहला, गरीबों से मोहब्बत कर, उनको करीब कर। अहिब्बी अल मसाकीन व क़र्रबीहिम, गरीबों से मोहब्बत कर, उनको करीब कर। इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फ़सानी फरमाते हैं कि आलिम के लिए ज़हर कातिल है मालदारों से ताल्लुक रखना। इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फ़सानी रहमतुल्लाह अलैहि सल्लल्लाहु और आलिम को मिहर पारवान नंजी सेल्वंतरोड मोहब्बत भी। पैसे वालों की पैसे पे नजर रखना, दुनिया वालों की दुनिया पे नजर रखना, ये इज्जत को जाया कर देता है। पहली बात, अहिब्बिल मसाकीन व क़र्रबीहिम, गरीबों से मोहब्बत कर, उनको करीब कर। दूसरी बात, वला तस्तखलिक़ी थौबक हत्ता तुरक़्क़ईही, कभी अपने कपड़े को पुराना न समझ जब तक कि उसमें पेवन न लग जाए।
இதுவரையில உங்க ஆடைய கிளிய இல்லையோ அதுவரையில் உங்க ஆடைய பலசிந்து கருதவான ஒதுக்கவான जब तक पेवन नहीं है अभी पुराना नहीं है இது அது ஒட்டு போடுறது இதுவரையில வித்தியா ஒட்டு போடுறது அதுவரையில இந்த உறுப்பு அது பலசி ये सारे नौजवान उलमा सुन रहे हैं இதெல்லாம் வாலிபர்கள் மாணவர்கள் கேக்குறீங்களான்னு கேக்குறாங்க जो स्त्री के बगैर पहन नहीं पाते ஆனா இன்னைக்கு எல்லாம் வந்தீங்க ஐடி இல்லாம உடுத்த ரெடி இல்லாம किसी दिन बेगम ने कपड़े इस्त्री नहीं किए तो गुस्से हो जाते हैं हम என்னையாச்சும் சகோதரி உள்ள ஒரு பயன்படுத்தி தர இல்லடா அது பிரச்சனை मैंने खत्म बुखारी के जलसे में जाना है तुमने कपड़े इस्त्री नहीं किए நான் புகாரி மஜ்லிஸ் கட்ட மிலா கோவிலோட பயன்படுத்தலைன்னு கோவிக்கிறீங்க मैंने खत्म कुरान की मजलिस में जाना है तुमने कपड़े इस्त्री नहीं किए குர்ஆன் படிக்கிற மஜ்லிஸிலே சபைக்கு நான் போவேனோட பயன்படுத்தல ये आलिम की शान नहीं है அதுதான் இதெல்லாம் கோவிக்குது ஒரு ஆலிமுக்குள்ள தன்மைகள் இல்ல वला तस्तखलिqi थौबक हत्ता तुरक़िही जब तक कपड़े में पेवन नहीं है तब तक ये पुराना नहीं नया है இதுவரை அவன் உடுப்புல ஒட்டு போடப்பட இல்லையோ அதுவரை அந்த உடுப்பு பலசி இல்ல அது புதுசுதான் ये दो बातें हो गई ரெண்டு விஷயம் சொல்லியா तीसरी बात कभी மூணாவது எப்பயுமே भी दुनिया के लिहाज से अपने से ऊपर वाले को न देखना எப்பயுமே உலக அடிப்படையில தன்னை விட மேல உள்ளவரோட பார்க்கப்படாது अपने से नीचे वाले को देखना தன்னை விட கீழ உள்ளவரோட பார்க்கணும் इससे तुम्हारी जिंदगी में शुक्रगुजारी आएगी இந்த தன்மையால ஒரு உள்ளத்துல அல்லாஹ் நன்றி உள்ளவர்களா நன்றி செலுத்துற அந்த தன்மை வரும் जिसके पास मोटरसाइकिल है वो कार वाले को न देखे वो साइकिल वाले को देखे யார்ட்ட மோட்டார் சைக்கிள் கிட்ட ஒரு கார்ல போறாரு பார்க்கவானா ஒரு சைக்கிள்ல போறாரு பாருங்க अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ने मोटरसाइकिल दी है அல்லாஹ்க்கு நன்றி செலுத்துவோம் அல்லாஹ்க்கு அல்ஹம்துலில்லாஹ் அல்லாஹ் எனக்கு மோட்டார் சைக்கிள் தந்திருக்கான் जिसके पास किराए का मकान है वो जाती मकान वाले को न देखे वो झोपड़े वाले को देखे அத சொல்றாங்க யாரு வாடகை குடிக்கிறோ அவர் சொந்த வீட்ல இருக்கிறார பார்க்கவானா கூட இல்லாம ஒரு இடத்துல தங்கிக்கிற அவரை பாருங்க जिसके पास झोपड़ा है वो पक्के मकान वाले को न देखे वो सड़क पे सोए हुए को देखे அத சொல்ற யார்ட்ட ஊடும் இல்லாம கூட செய்தியா வந்து இருக்கிறாரோ அவரு நல்ல அழகான வீட்டுல உள்ளார பார்க்கவானா ஒன்று இல்லாம வெளியில தூங்கிக்கிறாரு அவரை பார்க்க इससे अल्लाह का शुक्र पैदा होगा இந்த தன்மைகளால அல்லாஹ்க்கு நன்றி செலுத்துற உணர்வு வரும் एहसास कमतरी उस वक्त पैदा होता है उलमा में जब वो पैसे वालों को देखते हैं இதே வகையில் இந்த உணர்வுகள் மாற்றமான வெப்பு வருதா உலமாக்களே உண்டாகுதா அந்த பணக்காரர்களை பார்க்கறதா और मायूसी आती है அதனால என்ன வருது ஒரு நிராசையான உணர்வு வருது दिल गमगीन होता है உள்ளத்துல கவலை வருது तबीयत परेशान होती है டென்ஷன் வருது क्यों इसलिए कि हमने गलत किया ஏன் தெரியுமா இதெல்லாம் வருது நாங்க பிரயாணம் வேலை செய்யறோம் அதனால இதெல்லாம் வருது एक बुजुर्ग कहते हैं कि एक दफा मेरी जूती टूट गई ஒரு பெரியார் சொல்றாரு ஒரு நாள் இந்த ஸ்லிப்பர் அது பிஞ்சிச்சு जूती स्लीपर नहीं जूती चप्पल टूट गई ஒருத்தர் அவருடைய சப்பான் பிஞ்சி कहते हैं मेरे पास पैसे नहीं थे அது வாங்குறதுக்கு என்கிட்ட பணம் இல்லை और गर्मी शदीद थी சரியான வெயிலா இருந்துச்சு अब मुझे मस्जिद में जाना था எனக்கு பள்ளிக்கு போக வேண்டியிருந்துச்சு और जमीन इतनी गर्म थी कि मैं जा नहीं सकता था பூமி எவ்வளவு சூடுனா எனக்கு போறதுக்கு இயலாது तो मेरे दिल में अल्लाह से शिकायत पैदा हुई என் உள்ளத்துல அல்லாஹ்வோட ஒரு புறப்பாடு உண்டாகுது मैंने कहा या अल्लाह आपने मुझे इतने भी पैसे नहीं दिए कि मैं जूती ले लेता ताकि आपके घर जा सकता அல்லாஹ் எனக்கு இந்த அளவு சரி பணம் தரலையே சப்பாத்து வாங்க வீட்டுக்கு போகுது अभी ये सोच ही रहा था कि एक शख्स को देखा जिसके पांव नहीं थे और वो जमीन पे घिसट के मस्जिद जा रहा था இது எப்படி யோசனை வந்துச்சோ திடீர்னு கண்டுக்கு முன்னு குரான பாட்டு அவருக்கு காலே இல்ல அவரை அரவாசி தான் துண்டு அதாவது தள்ளி போய் கொண்டிருக்கிறார் कहने लगे मैंने रो पड़ा இப்ப நான் அத ஆரம்பிச்சேன் मैंने दौड़ लगाई मस्जिद को இப்ப நான் ஓடி பண்ணிருக்கோம் या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने पांव तो दिए हैं அப்ப அல்லாஹ் சொன்னே யா அல்லாஹ் உனக்கு நன்றி எனக்கு நீ கால் தந்திக்கிறியே மஸ்ஜிதுக்கு வா इस पे एक लतीफा सुनो मुझे एक लतीफा सुनाओ ஒரு சின்ன ஒரு நகைச்சுவை ஒன்று செல்லவா சொல்லி கேட்கிறார் सुनो செல்லவா கேட்கிறார் एक शख्स एक बुजुर्ग के पास आया ஒரு மனிதர் ஒரு பெரியார்ட்ட வந்தார் कहने लगा हजरत मेरा घर बहुत छोटा है मैं बहुत परेशान हूँ அதற்கு இந்த ஊரு நல்லாவே சின்னன்
சரியான ஒரு யோசனையா இருக்குது. मैं बीवी बच्चे सारा दिन शोर, मुझे नींद नहीं आती. அவங்க பிள்ளைகள் வீட்டு மனைவி வேற சத்தம், முழு நாளும் தூக்கம் இல்லை. बहुत तंगी है. சரியான நெருக்கடியா இருக்குது. आप दुआ करें अल्लाह बड़ा घर दे दे. दुआ செய்யுங்க அல்லாஹ் பெரிய வீடு தாக்குது. तो बुजुर्ग मुराकबे में चले गए. இப்ப பெரியார் முராக்கபா இருக்காங்க. थोड़ी देर के बाद सर उठाया और फरमाया कि भाई ऐसे करो, अपने घर में एक बकरी बांधो. அந்த பெரியார் முராக்கபா இருந்து அலைய தூக்கி சொன்னாரு, பாருங்க இப்பேர் வேலை செய்யுங்க, ஒரு ஆணை எடுத்து போயிட்டு உங்க வீட்டுல கட்டுங்கன்னு சொன்னாங்க. उन्होंने सोचा कि शायद बकरी में बरकत होगी, उन्होंने बकरी लाके बांधी. अब छोटा सा घर, उसमें बकरी भी आ गई और बकरी महंगियां भी करे, पेशाब भी करे, वो भी वहीं. सारा घर नापाक. परेशानी और बढ़ गई. पहले सिर्फ शोर था, अब बदबू भी आ गई. कुछ दिन के बाद फिर आया, कहा हजरत आपने जो वजीफा बताया था बकरी को रखने वाला वो तो किया है, लेकिन कोई फर्क नहीं हुआ. बुजुर्ग फिर मुराकबे में चले गए. फिर सर उठाया, फरमाया अपने घर में एक मुर्गा रखो. उनका अच्छी बात है, बुजुर्ग की बात है, तो इंशाल्लाह इसमें फायदा होगा. एक मुर्गा खरीदा लाके घर में रखा. अब वो मुर्गा सारा दिन अजाने दे. कभी चारपाई पे बीट कर दे पखाना, कभी बिस्तर पे पखाना कर दे. ये बड़े परेशान हुए. हफ्ते 10 दिन के बाद फिर बुजुर्ग के पास आए. कहने लगे हजरत आपने जो वजीफा बताया था मुर्गे वाला वो भी कर लिया, लेकिन परेशानी और बढ़ गई है. तो बुजुर्ग फिर मुराकबे में चले गए. थोड़ी देर के बाद सर उठाया और कहा अपने घर में एक गधा बांधो. अब जब गधा आएगा घर में, आप खुद जानते हैं क्या हशर होगा. बकरी की गंदगी काबिल बर्दाश्त है. मुर्गे की अजान भी काबिल बर्दाश्त है. लेकिन गधे की आवाज तो नाकाबिल बर्दाश्त है. इन्न अनकरल अस्वात लसौतुल हमीर. सबसे बुरी आवाज गधे की होती है. अब वो गधा सारा दिन घूमता था. पहले तो कुछ आराम था, अब तो बिल्कुल ही आराम चला गया. मगर बुजुर्ग की बात थी इसलिए इनकार कर नहीं सकते थे. हफ्ता 10 दिन बर्दाश्त किया. फिर आए बुजुर्ग के पास. हजरत गधे वाला काम भी खराब हो गया. हजरत फिर मुराकबे में चले गए. मुराकबे से सर उठाया और फरमाया अब बकरी निकाल लो. इन्होंने बकरी निकाल दी. हफ्ते 10 दिन के बाद फिर आए. बुजुर्ग ने पूछा क्या हाल है. का कुछ फर्क है. फिर मुराकबे में चले गए. फिर फरमाया मुर्गा भी निकाल दो. हफ्ते 10 दिन के बाद फिर आए. कहा हाँ भाई क्या हाल है. का अल्लाह का शुक्र है कुछ बेहतरी आई है.
अल्लाह के अल्हम्दुलिल्लाह इतना मुझे है रुपए நல்ல பண்ணிட்டேன் फिर मुराकबे में चले गए, திருப்பி முராக்கபா இல்ல सर उठाया और फरमाया अब गधे को भी निकाल दो। இப்ப தலை தூக்கி சொன்னாரு கல்லை வெளியே போட்டுடுங்க। अब चंद दिन के बाद आया, இப்ப கொஞ்ச நாள் கழிச்சு कहाँ बोलो क्या हाल है? இப்ப சொல்லுங்க எப்படி என்ன ஆராதனை கேட்டாங்க। का अल्लाह का शुक्र है घर जन्नत लग रहा है। இப்ப சொன்னாரு அல்ஹம்துலில்லாஹ் இத ஒரு சொர்க்கம் போல இருக்குது சொன்னாரு। परेशानी उस वक्त आती है जब हम दुनिया के लिहाज से अपने से ऊपर वाले को देखते हैं। टेंशन मनसले निम्मदिना निलमे पवरमंडा एप्प दुनिया अडिपडेयिल एगरवडे मेल उल्लांघनल पक्कम इनड गमन पोगुदो अप्पदान इदे तन्न नेमो ऊपर वाले को न देखें, नीचे वाले को देखें। एप्पयum मेल उल्लांघनल पाकनी ये हमारे नबी की हमें नसीहत है। इदे इनड नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एगले काम सेंटर बुद्धिमती है। ये 3 बातें हो गई। चौथी बात हमारे नबी ने फरमाया कि आयशा दीन के लिहाज से हमेशा अपने से ऊपर वाले को देख, नीचे वाले को न देखना। दीनुடைய அடிப்படையில எப்பையும் தன்னோட மேல உள்ளாங்க பாருங்க, அதுல கீழ உள்ளாங்க பாருங்க। ये जो खुद पसंदी है और तकब्बुर है और गुरूर है, ये इस वजह से पैदा होता है। நான் பெரியார் என்ன நினைக்கிறது, அந்த பெருமை வாரது, அந்த ஏமாற்றம் இருக்குது, இது இல்லாமதான் நீங்க தன்னோட கீழ உள்ளாங்க பாருங்க, மேல உள்ளாங்க பாருங்க। जो 5 नमाजें पढ़ रहा है वो उसको न देखे जो 5 नमाजें नहीं पढ़ता, वो उसको देखे जो तहज्जुद भी पढ़ता है। यार अजनेर தொழுகோ அவரே அஜनेर தொழுகை இல்லாத பாக்கறல, அவர்தான் தொழுறாரு, அவர்தான்। जो सिरोजा लगा रहा है वो उसको न देखे जो सिरोजा भी नहीं लगा रहा, वो उसको देखे जो हर साल 4 महीने लगा रहा है। यार மாதாந்த மூணா போறாரோ அவரே ஒன்றுமே இல்லாம பாக்கறல, அவர் வருடான 4 மாசம் போறாரு பாக்கறல। अम्मा आयशा हमारे नबी ने फरमाया अगर ये 4 काम तुम कर लो तो जन्नत में तुम मेरे साथ रहोगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल तन्ने आयशा रदियल्लाहु अन्हा बाते एपे नाल मेरे के सेविंगरो संततले इनोड कूडे इपीएस। तो आप में से हुजूर के साथ जन्नत में कौन रहना चाहता है? अदर केरा इन सभेला यार अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कूडे संततले आशा पड़े केरा। अल्लाह अकबर। दुनिया में तो हम हुजूर को देख नहीं सके, हमने हुजूर का जमाना नहीं देखा। अगर हमें मरने के बाद भी हुजूर के साथ रहना नसीब न हुआ तो ये कितनी कम किस्मती की बात है। तो इन 4 बातों का एहतमाम फरमाएंगे। और दिल को हर एक के लिए साफ रखें। फ़इन्न ज़ालिक मिन सुन्नती वमन अहब्ब सुन्नती कान मई फिल जन्नह। जो सबके लिए दिल को साफ रखेगा वो जन्नत में हुजूर के साथ होगा। अगर आप आलिम हैं गैर आलिम को हकीर न जाने, अगर आप नमाजी हैं तो बेनमाजी को हकीर न जाने, अगर आपने दाढ़ी रखी है तो बेदाढ़ी को हकीर न जाने, बल्कि अगर आप मुस्लिम हैं तो गैर मुस्लिम को हकीर न जाने। अपने नबी के कौल में गौर करें। इन क़दरत अन तुस्बिह व तुमसिय व लैस फी क़ल्बिक ग़िश्शुन लिअहदिन, लिमुस्लिमिन नहीं, लिअहदिन, किसी के लिए ग़िश न हो।
உங்களுக்கு கல்வில யார் பத்தி அகதியை பேசுறாங்களே தவிர முஸ்லீமை சொல்லல. முஸ்லீமுக்கு யாரை பத்தி முஸ்லீமோ முஸ்லீம் இல்லையோ யாரை பத்தியும் ஒரு உள்ளத்துல எந்த ஒரு தப்பிலும் இல்லாத काले वाले अड़ेल में आप नहीं सही कर सकते। इमाम रब्बानी फरमाते हैं, जिसका मफहूम है किसी गैर मुस्लिम को भी अपने से हकीर न जानो, इसलिए कि उसके कलमा पढ़कर वली बनने का वक्त बाकी है और तुम्हारे कलमे कुफ्र कहकर कुफ्र पे मरने का वक्त बाकी है। इमाम रब्बानी मुझे पिताने रहमतुल्लाह अलैहि के लिए बात है और जवाब देता है और मुस्लिम इलाका யாரையுமே கண்டு நீங்க ஒரு ஈமானான பாத்திர வானா ஏடா அவர் கலிமா சொல்லி அல்லாஹ்வுடைய வலியான ஆகிறதுக்குள்ள நேரம் மிச்சம் இருக்குது. உங்களோட கலிமா பரிபலி உங்களோட முடிவு குஃப்ர் ஆகிறதுக்குள்ள நேரம் மிச்சம் இருக்குது சொல்லுவாங்க. हमारे एक बुजुर्ग थे, वो मस्जिद जा रहे थे नमाज पढ़ने के लिए। और मस्जिद में अंदर बोलता बोलेगा रास्ते में गंदा पानी खड़ा हुआ था। बढ़िया सुता मिला आले पे करनी मुझे देखी थी। रास्ते पानी के करीब एक छोटा सा रास्ता था खुश्क, जिससे मस्जिद जाना था। जब उस पतले रास्ते पे चल रहे थे तो सामने से कुत्ता आ रहा था। तो अब हजरत को तो कपड़े बचाने थे नमाज के लिए, कुत्ते को तो नमाज नहीं पढ़नी थी। तो कुत्ते से कहने लगे ताकि वो गंदे पानी में उतर जाए, मैं गुजर जाऊं, मेरे कपड़े बच जाएं। तो अल्लाह ने कुत्ते को गोयाई दी, अल्लाह ने कुत्ते को बोलने की ताकत दी। उस कुत्ते ने कहा, हजरत साहब अगर आप उतर गए तो सिर्फ 5 गंदे होंगे, वो पाक हो जाएंगे, लेकिन अगर मैं उतर गया तो आपका दिल गंदा हो जाएगा। हमारे बुजुर्ग तो ऐसे थे। उलाइका आबाई फजनी बिमिस्लिहिम इदा जमाअतना या जरीरुल मजामिउ। ये हमारे अकाबिर थे जिनके अंदर इतनी तवाज़ु थी। हमारे एक बुजुर्ग थे हजरत शाह अब्दुल कादिर रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह। ये आप जानते हैं कौन है? मौलाना मंजूर नोमानी का नाम सुना है? सुना है? ये उनके पीर हैं। सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी का नाम सुना है? ये उनके पीर हैं। हाजी अब्दुल वहाब साहब का नाम सुना है? शाह अब्दुल कादिर रायपुरी उनके पीर हैं। अब्दुल वहाब साहब उनके मुरीद थे। और ये वो हैं जिन्होंने मौलाना इलियास साहब के इंतकाल पर मौलाना यूसुफ साहब के अमीर होने का फैसला किया। मौलाना सास साहब खलीफा हैं मौलाना इफ्तिखारुल हसन कांदिलवी रहमतुल्लाह अलैह के। मौलाना इफ्तिखारुल हसन कांदिलवी खलीफा हैं शाह अब्दुल कादिर रायपुरी के। अब समझ गए वो कौन है? इनके खादिम खास थे मौलाना अब्दुल मन्नान साहब। 40 साल उन्होंने उनकी सोबत में गुजारे। एक दफा जा रहे थे, मुझे उनके खादिम ने बताया
அந்த அப்துல் மன்னான் சாஹிபுடைய காரியம் தான் ஹஜ்ரத் இந்த கதையை சொல்லியிருக்காங்க. कहने लगे एक दफा हम पतली गली में जा रहे थे, ஒரு ரொம்ப ஒடுக்கமான ஒரு பாதையிலே போய் கொண்டிருக்கிறார். तो सामने से कुत्ता आ रहा था। முன்னுக்கு நாய் வந்துச்சு. कुत्ता इनको देख के भागने लगा पीछे, இவர கண்ட மட்டும் நாய் விரண்டு பின் ஓடிச்சு. तो ये दीवार से चिपक गए இவர் அப்படியே மதிலோட சேர்த்து நின்னுட்டார். और कुत्ते के साथ बड़े अदब से फरमाने लगे, आइए आइए तशरीफ ले जाइए। இப்ப ரொம்ப கண்ணியமா வாங்க இப்படி போங்க சரி அது நாயை பார்த்து, इसलिए कि ये कुत्ता मेरे अल्लाह का है। அவர் சொன்னார், என்ன தெரியுமா, இந்த நாய் இருக்குது இது அல்லாஹ்வுடைய படைப்பு சரி, ये मेरे अल्लाह का कुत्ता है। இது அல்லாஹ்வுடைய படைப்பு நாய்। हमारे अकाबिर ऐसे थे। ये प्रियाकल இப்படி இருந்தார்। अल्लाह हम सबको वो सिफात अता फरमाए, अल्लाह எல்லாருக்கும் உயர்ந்த தன்மைகளை दुनिया की मोहब्बत से नजात अता फरमाए। உலகத்தை நேசிக்கிறதுல யாருக்கும் விடுதலை தருவானா। और ये उलमा कभी भी दुनियादारों को देख के ललचाई हुई निगाह से न देखें। அது சொல்றாங்க, உலமாக்கள் நீங்க எப்படி दुनियादारीகளை அப்படி ஒரு பெருமையான பார்வையோட பார்க்கலாம்। आपके पास जो दौलत है वो बाकी है, உங்களுக்கு அல்லாஹ் என்ன பாக்கியம் தந்திருக்கிறானோ அது நிரந்தரமானது। दुनियादारों के पास जो दौलत है वो फानी है। दुनियादारीகளுக்கு என்ன தந்திருக்கிறானோ அது அழிஞ்சு போகுது। हजरत अली फरमाते हैं, रज़ीना क़िस्मतल जब्बार फ़ीना लना इल्मुन वलिल जुहाल मालू फ़इन्नल माल यफ़ना अन क़रीबिन व इन्नल इल्म बाक़िन ला यज़ालू। ऐ अल्लाह, हम तेरी तक़सीम पे राज़ी हैं, आपने हमें इल्म दिया और जाहिलों को माल दिया। ऐ अल्लाह, माल तो खत्म हो जाएगा, इल्म तो हमेशा बाकी रहेगा। நீ பங்கு வச்ச இந்த பங்கு வைக்க முறைய நாங்க மனசார புரிந்து கொள்றோம்। எங்களுக்கு நீ எழுபத்திருக்கிறாய், இந்த தீக்க அறிவில்லாத அந்த மக்களுக்கு நீ செல்வத்தை காசுபடுத்த கொடுத்திருக்கிறாய்। எங்களுக்கு அந்த அழிவோ இது நிரந்தரமானது, அவங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட காசு மனம் அழிஞ்சு போறது என்று அதே பற்றிய நான் சொன்னேன்। और ये ना सोचना कभी कि पढ़ा पढ़ा के बहुत पढ़ा लिया, अब दुकान खोल लूं मैं भी। இப்ப ஒரு நாள் நிறுத்தி யோசிக்காதீங்க, ஓதி 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 கொடுத்து நிறைய செஞ்சாச்சு இப்போ ஒரு கல்யாணம் போடணும்னு யோசிக்காங்க। ये वसवसा है, அப்படி வாரத்தை ஷைத்தான புறத்திலிருந்து வார யோசனை। कभी ये ना सोचना இப்படி ஒரு நாள் ஒரு யோசனை வரப்படாது। हम हुजूर के नायब हैं। நீங்க நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் को बरदरी हराम अल्लाह आप अलैहिस्सलाम चटाई पे लेटे हुए थे। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फुल पाया पड़ते हो। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं, मैंने कहा या रसूलल्लाह, आपके लिए कोई नरम गद्दा बना दे। ये अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और बिरलवान बिल्कुल सही दरवाजा देगा। आपने फरमाया माली वलिद दुनिया, मैं दुनिया का क्या करूं। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तो बोला है कि ये सर्वत में की दुनिया में आए में सही है। मा अना फिद दुनिया इल्ला कराकिबिन, எனக்கு இந்த உலகத்தோட உள்ள உறவு ஒரு பிரயாணியை போல கடந்து போராட போல இருக்கு। तो अल्लाह ने जिस हाल में रखा है खुश रहें। அல்லாஹ் எந்த நிலையை வச்சிருக்கிறானோ அந்த நிலையில சந்தோஷமா இரு। नमाज़ें नसीब हैं, सरों पे टोपियां हैं, सफेद जुब्बे हैं, कुरान सामने है, अहादीस की किताबें सामने हैं, फिक्र की किताबें सामने, और आपको क्या चाहिए। अरे सलाम தொழுகை தொழுகிற பாக்கியம் கிடைச்சிருக்குது, வேற ஒழுங்கு இந்த சுன்னதான தோற்றம் கிடைச்சிருக்குது, குர்ஆன் கிடைச்சிருக்குது, ஹதீஸ் கிதாப் கிடைச்சிருக்குது, ஃபிக்ஹ் கிதாப் கிடைச்சிருக்குது, இதை விட உயர்ந்த என்ன செல்வம் வேணும் உங்களுக்கு? बाकी रहा खाना, मिल जाए तो खा लो, नहीं मिले तो कहो इन्नी इदल लसाइमुन। अरे सलाम अल्लाह சாப்பாடு எனக்குதா சாப்பிடுங்க, இல்லையா நோம்பு செஞ்சுக்க। आप अलैहिस्सलाम घर में तशरीफ लाते, अज़वाज मुतहरात से पूछते कुछ खाने के लिए है, वो कहती नहीं, अब फरमाते इन्नी इदल लसाइमुन। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जमाना मलेमार का केकाड सापड़े सही दिया और इन्हें जैसे सनाग अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना ने देखो वो ही करे ना। आप थक गए होंगे अभी। ये ना है कि बोले कि चला है केला। एक दफा आप अलैहिस्सलाम मस्जिद में तशरीफ लाए दोपहर के वक्त में। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पकड़ में मस्जिद में हजरत अबू बकर हजरत उमर दोनों बैठे थे। आपने फरमाया ये तो आराम का वक्त है, यहाँ क्या कर रहे हो तुम। कहने लगे या रसूलल्लाह, भूख इतनी शदीद है कि घर में बैठा नहीं गया।
आपने फरमाया वल्लाह मा अखरजनी इल्ला मा अखरजकुमा। அல்லாஹ் மீது சத்தியமா சொல்றேன், உங்களை ஏது வீட்டுல இருந்து வெளியே கொண்டு வந்துச்சோ அதுதான் என்னை வெளியே கொண்டு வந்துச்சு। சரி சரி। आपने दोनों को लिया और हजरत अबू अयूब के घर चले गए। वो बाग में गए हुए थे। हजरत अबू अयूब की बीवी ने देखा तो वो बहुत खुश हो गई। बाग उनके पास ही था। खाविन को इत्तला की और फिर वापस आ गई। हजरत अबू अयूब आए तो खजूरें तोड़ के ले आए। सलाम के सामने खजूरें पेश की। फिर बीवी से कहा तुम रोटी पकाओ, मैं जानवर ज़बह करता हूँ, बकरी। रोटियां भी पक गई और बकरी भी गोश्त की तैयार हो गई, बकरी का गोश्त भी तैयार हो गया। जब रोटी और बकरी का गोश्त सामने आया तो आपने खुद नहीं खाया। हजरत अबू बकर हजरत उमर ने नहीं खाया। आप सलाम ने एक रोटी उठाई, एक गोश्त का टुकड़ा रखा और फरमाया या अबा अयूब अबलिग बिहाज़ा फातिमा फ़इन्नहा लम तुसिब शैअन मुंदु अय्याम। अबू अयूब ये एक रोटी और बोटी मेरी बेटी फातिमा को दे आओ, उसने कई दिन से कुछ नहीं खाया। इसलिए भूख से डरे नहीं, गुर्बत से डरे नहीं। कुन्तु अला बाबिल जन्नह फ़काना आम्मतु मन दखलहल मसाकीन। आपने सलाम फरमाते हैं मैं जन्नत के दरवाजे पे खड़ा हुआ तो सबसे ज्यादा जाने वाले गरीब थे। मालदार थोड़े थे, क्योंकि जब माल आता है फिर अल्लाह याद नहीं रहता। ओहदा आ जाए फिर अल्लाह याद नहीं रहता। इसलिए अक्सर माल वाले अल्लाह के बागी होते हैं। इल्ला माशाअल्लाह। फिरौन को उहदे ने बागी किया, हारून को माल ने बागी किया, बनी इसराइल को औरतों ने बर्बाद किया। अल्लाह ताला हमें जिस हाल में रखे उस हाल में राजी रहे। एक वाकया मुझे छोटा सा याद आ गया, थके न तो वो भी सुना दूं। पता नहीं फिर कभी आप हाथ आएंगे नहीं आएंगे। अपना दर्द दिल सारा आपके सामने पेश कर दूं। हमारे एक बुजुर्ग थे हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह। वो एक दफा अंग्रेज की जेल में थे। जब ये जेल में गए तो जितने कैदी थे उन्होंने देखा कि इतने बड़े बुजुर्ग आए हैं, तो कोई आके पाँव दबाता, कोई आके सर दबाता। और फिर वो थोड़ी देर पाँव दबा के कहते हजरत दुआ करें मेरी रिहाई हो जाए। हजरत दुआ करते अगले दिन वो रिहा हो जाता। बहुत सारे कैदी रिहा हो गए। तो एक कैदी ने कहा हजरत ये इतने सारे आपकी दुआ से रिहा हो गए, आप अपने लिए दुआ नहीं करते हैं? तो हजरत नाराज हो गए और फरमाने लगे
अरे मियाँ रजा बिल क़ज़ा भी तो कोई चीज है। जब अल्लाह ने मुझे यहाँ रखा है, मुझे अल्लाह से ये कहते हुए शर्म आती है कि मैं यहाँ नहीं रहता। अल्लाह ने जिस हाल में रखा है खुश रहे हैं। ईमान की सलामती की फिक्र करें। फितनों का दौर है। मोबाइल बड़ी खतरनाक चीज है, बड़ी खतरनाक चीज है। डरें अल्लाह से, इसको सिर्फ जरूरत के लिए इस्तेमाल करें। काल आए तो सुने, फिर तकिए के नीचे रख दें। अगर ये हाथ में रहेगा तो आपके दिल में खारिश होगी कि इसको क्लिक करो। फिर आपके दिल में आपके हाथ में खारिश होगी, फेसबुक भी क्लिक करो। फिर हाथ में खारिश होगी, यूट्यूब भी देखो। फिर इसमें वो कुछ आपको नजर आएगा जिससे ईमान बर्बाद हो जाएगा। तैयार है इंशाअल्लाह। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।